If given an option, would you go back in time and do something else instead of working for 4 years at TCS? TCS is not a bad company, Of course. but पर आपका तो वर्क फ्रॉम होम है. But from that, पर मैं तो एक ही इंसान हूँ, खाता भले दो लोग का हूँ. Hi, my name is Sushant. I work at Amazon. I moved to Bangalore 6 months back, and in my free time, I like to cook. hi, I'm Apurva. I work at Deloitte as a senior analyst, and in my free time, I love to sing. So we recently got married. Around a year back, and we moved here in Bangalore around 6 months back. So there is a lot of noise around our finances. So we have invited Anshuman to fix our finance. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस. आज हमारे साथ है 27-year-old सुशांत एंड अपूर्वा, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है और रिसेंटली ये लोग बैंगलोर में शिफ्ट हुए. अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू वर्क एट Amazon. बहुत सारी चीजें सुनी है, कल्चर के बारे में सुनी है. प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस. Yeah, so previous to Amazon, I was working in a product-based company. Amazon है तो brand तो है. So when you got this job, how big was the jump? Pay jump? It was around 60 to 70%. 60 to 70%. What about you? You shifted from TCS to Deloitte. Yes. आपका कितना बड़ा रेस था? For me, it was around 150% hike. What was your CTC at TCS? When I joined TCS, my CTC was 3.5, and later on, even after four years, even after 4 years, it was just 4.2. If given an option, would you go back in time and do something else instead of working for 4 years at TCS? Yeah, I would have switched earlier. Okay. तो अभी आपकी इनकम कितनी है? आपका CTC कितना है और आपका मंथली टेक होम पे कितना है? So my CTC is 28.9 and take home after taxes, I think 7 lakhs tax cover, tax and other. So I can say 23. मंथली इनकम कितना है आपका? It's around 1.7 after taxes. 1.7 lakhs after taxes. ठीक है. What about you? मेरा CTC 14 है, 14 LPA, and monthly after taxes it comes around 90K. तो आपका कलेक्टिव प्री टैक्स एनुअल इनकम है 42 lakhs और पोस्ट टैक्स आपका मंथली इनकम करीब 2.6 lakhs है. तो काफी सही है. Yes, but आगे भी है कुछ. So we are married for a year now. We'll be completing one year in December. अरे congratulations. Thank हाँ. you. So we were planning to expand the family maybe a year after that. So उसके regarding हमें कुछ planning के लिए थोड़ी जरूरत थी. And maybe after that, once the baby is there, she may not work or take a break from the career for 1 or 2 years. Yeah. So in that case, ये जो भी हमारा अभी current situation में तो all is okay. But after that खर्चे भी बढ़ेंगे, wants भी बढ़ेंगे, and needs भी बढ़ेंगे. और इनकम कम हो. So उस केस में ये कैसे mitigate कर सकते हैं? एक चीज आप कर सकते हो कि अभी जब इनकम काफी ज्यादा है तो जो अगर 2-3 साल में अगर बच्चा होगा तो इमीडिएट 1-2 साल के बहुत खर्चे होते हैं, है ना. प्री हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, मेडिकल हो गया, उसके बाद जब बच्चा आएगा एक बहुत बड़ा मतलब खर्चा लायबिलिटी है. ठीक है. तो फिर बाद में ये मेरी मम्मी बोलती है, मैं नहीं बोलता. ठीक है. तो हाँ, तो इसमें बहुत सारे खर्चे वो 1-2 साल में आएंगे. तो आप एक काम कर सकते हो कि यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग your money in balanced advantage funds. Balanced advantage mutual funds are a mix of equity and debt. ताकि आपको नहीं पता कि अभी 1 साल में बच्चा होगा कि 3 साल में बच्चा होगा. But at the same time, you cannot take a lot of risk by putting everything into equity. Balanced funds or hybrid funds are mutual fund schemes which are a mix of equity and debt. अगर आपके goals 2 से 5 साल के टाइम ड्यूरेशन के हैं तो ये फंड्स काफी सही है, बिकॉज आपको इसमें स्टॉक मार्केट का हाई रिटर्न्स का एक्सपोजर मिल जाएगा और डेट का हाई सेफ्टी का भी एक्सपोजर मिल जाएगा. तो एफडी से काफी ज्यादा रिटर्न्स और साथ ही साथ प्योर इक्विटी स्कीम से काफी कम रिस्क. तो अभी आप वो बेबी प्लानिंग के लिए कितना सेव कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेंसेस. तो अभी आप लोगों के फिक्स्ड क्या क्या एक्सपेंसेस है? ये घर आप लोगों ने रेंट में ही लिया है, तो उसका कितना है? Rent is 15,000. 15,000. So apart from this, like electricity and all अगर आप पकड़ लो, we also bought a two-wheeler. So सब मोटा मोटी मिला के अराउंड 2.5 lakhs तक हमने स्पेंड किया once we वन टाइम कॉस्ट. ठीक है. apart from that, हमें वापस जाना पड़ता है हमारे होम टाउन काफी बार, since we are like this is the first year of our marriage. Of course. And also festivities and all were all lined up.
सो ये 6 महीनों में हम एटलीस्ट 3 बार तो भी जाके आए हैं हमारे होम टाउन एंड ऑल्सो टू पुणे. ओके, मैं इन 6 महीने में जो 3 ट्रिप्स किए हैं आप लोगों ने, उसमें आप लोगों ने कितना स्पेंड किया है? आई थिंक अराउंड 1 लाख. 1 लाख, ठीक है. तो अराउंड 15 से 16 हजार रुपए हम महीने का पकड़ सकते हैं. अगले 1 साल तक तो ये चलेगा ही, बिकॉज आप लोग न्यूली मैरिड हो. कुकिंग वगैरह, खाना वगैरह, आपका टिफिन का, आप टिफिन लेके जाते हो ऑफिस के, क्या है? Yes, टिफिन लेके जाते तो ठीक है, तो आप लोग खाना भी खुद ही बनाए हो. हैं खुद ही. ठीक है, तो ग्रोसरीज का क्या खर्चा होता है? ग्रोसरीज आई थिंक 3K per Around month. 3K. यार, ये कहाँ से आप ग्रोसरीज खरीदते हैं यार? मेरे ग्रोसरीज क्यों 3000 महीने में नहीं आते? ये क्या है? दो लोगों के लिए इतना ग्रोसरीज नहीं लगता है. पर मैं तो एक ही इंसान हूँ, खाता भले 2 लोगों का हूँ. हफ्ते में 3 दिन हम कभी ऑर्डर कर देते हैं, कभी मैगी पे चल जाता है. ठीक है, तो ये ऑर्डर करने में हफ्ते में कितना खर्चा होता है? यू कैन से 1K. 1000, तो Yeah. 4000 रुपए अपना ये फूड डिलीवरी Food वगैरह में. delivery. ठीक है. और वीकेंड में क्या करते हो? मंडे टू फ्राइडे तो काम चलता है, वीकेंड में क्या? व्हाट्स हाउस योर वीकेंड? वीकेंड तो हम लोग कभी कभी यही घूमने वगैरह चले जाते हैं. ओके, नहीं तो डिनर्स तो होते ही है, बाहर ही होते हैं. वीकेंड में मोस्टली डिनर्स तो बाहर ही होते हैं. ठीक है. तो उसमें कितना जाता है वीकेंड्स में? 5K पकड़ लीजिए आप सारे weekends में. So, सारे वीकेंड्स मिला के? Yeah. सही है. कोई लोन्स वगैरह कुछ चल रहा है अभी? Yes. Talking about loans, so we have a 2 BHK in Pune. उसका which is- EMI कितना है? उसका अभी फिलहाल तो जस्ट शुरू हुआ है. Still like digging up phase. So उसका 4.5K अराउंड जाता है. ठीक है. And the one which is I have invested उसका 27K के अराउंड जाता है. So मेरा क्वेश्चन इस रिगार्डिंग ही था, जैसे मेरे मॉम के अभी 4 years बाकी है रिटायरमेंट में. ठीक है. So after that, the EMI that she is currently paying, उसका कुछ पार्ट या maybe सारा पार्ट मुझे बेयर करना पड़ेगा. So how to close the loan early? You can shift from one bank to another to get a more attractive interest rate, which will also decrease your interest amount. Prepayment के बहुत सारे फायदे हैं. प्रीपेइंग अ लोन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द बोरोअर बिकॉज आप जो भी अमाउंट प्रीपे करते हो वो आपके प्रिंसिपल से कम होता है. तो अगर आपका प्रिंसिपल 25 लाख है और आप 5 लाख रुपए देते हो तो आपका प्रिंसिपल 20 लाख हो जाएगा और अगले महीने से जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो 20 लाख पे लगेगा. तो आपका लोन बहुत कम हो जाएगा. सुशांत और अपूर्वा को एक 10,000 रुपए का SIP शुरू कर देना चाहिए. अगर वो फंड उन्हें 8% देगा तो 5 साल बाद अमाउंट इतना बन जाएगा जिससे वो प्रीपे कर सकते हैं. अगर वो फंड हाई रिस्क और 10% देगा तो ये इतना अमाउंट लोन के तरफ प्रीपे कर सकते हैं. अगर परसेंटेजेस की बातें चल ही रही है तो मैं एक और फैक्ट बताना चाहूंगा. 75% of the people watching these videos have not subscribed to the channel. Guys, if you're liking these videos, subscribe to the channel and support us. Okay. म्यूचुअल फंड्स में SIP जाता है अराउंड 7K. ठीक है. स्टॉक्स में US एंड इंडिया में बोथ इन्वेस्ट करता हूँ मैं, सो अराउंड 10K to 15K जाता है टोटल. टोटल पर मंथ. अपार्ट फ्रॉम दैट हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं. 5K काइंड ऑफ RD हमने एक शुरू कर रखी है. ठीक है. टारगेट इज टू हैव 10 grams of gold by the end of the year. So that is one investment. PPF. एक PPF इन्वेस्टमेंट हम करते हैं. मैक्स आउट करते हो? फिलहाल नहीं, 12,000. फिलहाल नहीं करते, बट वी मे मैक्स आउट. बट अभी उसकी जरूरत नहीं लग रही है हमें बिकॉज़ स्टॉक पीरियड काफी ज्यादा है उसमें. ठीक है. तो अभी आपके पास 2 लाख के म्यूचुअल फंड्स है, 2 लाख के स्टॉक्स है. आपके पास कितने स्टॉक्स है टोटल? My portfolio is around 20 to 22 stocks. 20 to 22 stocks. According to me, that's not diversification but diversification. आप खराब कर रहे हो क्योंकि 20-22 स्टॉक्स मतलब आप पहली बात तो इतना रिसर्च ही नहीं कर पाओगे. हर कंपनी के बारे में प्रॉपर आपको नॉलेज होगी नहीं. दूसरी चीज ये है, हर कंपनी में आपके पास 10 से 12 हजार रुपए होंगे अगर इक्वली स्प्लिट है. तो अगर कोई कंपनी आपको 5 साल में 5x 6x भी दे दो तो 10,000 बनेगा 60,000. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ बट अ रिटर्न लाइक 5x 6x शुड एक्चुअली चेंज योर लाइफ. तो उससे तो अगर आपको खुद के स्टॉक्स पिक करने हो 8 से 10 स्टॉक्स लो, उनको अच्छे से परखो और उसमें अपना स्टेक बढ़ाओ. एक और चीज देखा, क्रिप्टो. उसमें आपने 5,000 रुपए डाले. मैं पहले ये बोलता था क्रिप्टो के लिए कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन अमाउंट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, बट आई थिंक आई वाज रॉन्ग. अगर आप एक ऐसा अमाउंट डालोगे विच यू कैन अफोर्ड टू लूज देन द स्टेक्स विल नॉट बी हाई. उसके बाद अगर आपको 10x 20x रिटर्न भी मिल गया, इट्स नॉट गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट फॉर यू. हु इज मोर लाइकली टू हाइड एन एक्सपेंस फ्रॉम देयर पार्टनर? Okay. Who is most likely to forget paying a bill? ठीक है. अगर आप क्रेड पे साइन अप करते हो तो ये वाली प्रॉब्लम तो चल जाएगी. क्रेड आपको टाइमली रिमाइंडर्स देता है ताकि आप कभी भी
अपना बिल पेमेंट मिस ना करो. Who is more likely to spend on shopping? Definitely me. अच्छा, ओके. आपने लास्ट टाइम कब शॉपिंग की थी? 2 months back. आपने लास्ट टाइम कब शॉपिंग की थी? अभी First Pink one. Friday से. अच्छा, ओके, ठीक है. Who spends more on food and drinks? Both. ठीक है. Who is good at bargaining? अरे भाई हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया, फाइनेंस बकेट लिस्ट, जिसमें हम गेस्ट को पूछेंगे कि उनको 10-5 सालों में ऐसी कौन सी चीज या तो खरीदनी है या फिर कुछ शुरू करना है. आप लोग बताओ, आपके बकेट लिस्ट में क्या है? So on top of our bucket list is to start our own cafe. Right. So let's say in 5 or 10 years, maybe not 10 years. Let's say in 5 years only, we have a plan to start a restaurant. But उसके लिए financial कैसे manage करें उसकी भी एक suggestion चाहिए. ठीक है. Is it going to be a side hustle or a full time thing? Side. Side hustle. साइड हसल. मेरे हिसाब से तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ज्यादा मुश्किल है. सबसे पहले तो डे 1 में आपका फिक्स्ड कैपिटल लगेगा. आपको 10-1 लाख तो लगेगा ही लगेगा बेसिक चीजें डालने के लिए. उसके बाद भी आपके मंथली रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे. आपका रेंट होगा, आपके एम्प्लॉयज, आपको मिनिमम 3 तो चाहिए. एक तो आपका सर्विस वाला हो गया, एक यूटेंसिल क्लीनिंग हो गया और एक शेफ हो गया. ठीक है. और उसके बाद भी इतना कंपेटिटिव मार्केट है कि कोई भी प्राइम लोकेशन में सिटी के हर 1 साल में वो एक दुकान में कोई नया रेस्टोरेंट आता है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन. सो आई डोंट थिंक कि आप बिना अपना टाइम दिए हुए इसको स्केल कर पाओगे. इसके 2 तरीके हैं. या तो आप पहले 1-2 साल बहुत ज्यादा टाइम कैफे में दो, इसको साइड हसल की तरह मत देखो, टाइम आपको लगाना पड़ेगा. या फिर आप इतना पैसा सेव कर लो कि आप डे 1 से एक मैनेजर विद एन एक्सपीरियंस आप उसको रख सको. और मेन बात यह है कि रेस्टोरेंट को एटलीस्ट 1 से 2 साल लगते हैं ब्रेक इवन होने में. टिल देन टू कीप इन्वेस्टिंग, कीप री इन्वेस्टिंग, दैट ऑल्सो माइट बी डिफिकल्ट. तो एक्सपर्टीज चाहिए, टाइम ज्यादा चाहिए और रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा. ऑलराइट गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग Thank दिस. you. स्पेशली आपका 10 मिनट में कॉल शुरू होने वाला है तो आप जा सकते हो. और थैंक्स फॉर फिलिंग दिस फॉर्म मैन. अगर आपको भी इस शो में आना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो लिंक को भरिए और जल्दी हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो, ताकि हर हफ्ते आपको ये नया वीडियो आपके होम पेज में मिल जाए. गुड बाय. मेरे केस में ट्रांसपोर्ट इज टेकन केयर ऑफ बाय देम. पर आपका तो वर्क फ्रॉम होम है. Yeah, but from January. आप ये पूछो मेरे को, शादी को कितने साल हो गए? And then आगे. ऊपर जी nice. Okay. Video over.